See, some of the students said this concept of like using binomial expansion, approximation using binomial expansion was not very clear. So I'll give you a few more examples on this. Using binomial expansion, approximation. Topic was approximation using binomial expansion. So I said in last lecture, I have written many expressions. Now I'll say, just remember this: 1 plus x whole raised to n is approximately equal to 1 plus nx, where x is very small. So 1 plus x whole raised to n is nearly same as 1 plus nx. ये आपको फिजिक्स में 11th में 12th में जे में बोर्ड्स में बहुत जगह पे यूज होने वाला है. This is a very important approximation using binomial expansion. What is written here? 1 plus x whole raised to n is 1 plus nx. ठीक है, एक एग्जांपल मैं करूंगा, 2-3 आपको देता हूं, then you solve. Suppose I have to calculate say root of 139, suppose root 139. So what I know is a number closer to it, square root of which is known from before. I know it is 144 and this is minus 5. So 139 can be written as 144 minus 5. Okay. Now what I'll do is I'll make this look like 1 plus x whole raised to n. So I have to make this 1 and this number should be very small. X should be very small as compared to 1. So 144 I'll take common. The root of 144 is 12. So I get 12 outside the root. 144 becomes 1 upon 5 by 144 raised to half. Now this looks like 1 plus x whole raised to n. So this formula is 1 plus nx. So n is half and x is minus 5 by 144. Now this is what you have to approximate. So I'll consider this as 140, 150, let us say. So 1 by 30, 1 by 30, 1 by 60. So 1 minus 1 by 60. So 1 minus 1 by 60 is 59 by 60. This is 5. So 10, 11.8. The answer is nearly 11.8. Right? So this is approximate answer. And if you take a number closer to like if you take the second term of this 1 plus nx, if you recall second term I've written as n into n minus 1 upon 2 into x square. If you consider second term also, so we'll get more precise, more accurate answer, right? But हमारा काम है approximation. तो हम जैसे जैसे approximate value निकालने में believe कर रहे हैं. And if anyone, today my computer is closed, if anyone of you calculate root 139 using calculator and see, the answer should be near about 11.8. कोई है किसी के पास कैलकुलेटर तो चेक करके देखो रूट 139 कितना आता है? Anyone? चलो जाना, कोई नहीं, किसी के पास नहीं है तो लीव इट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 139 इज 11.8. ये कैसे निकाला मैंने? बाइनोमियल थ्योरम से. वापस एक बार याद दिला दूं, 1 plus x whole raised to n is approximated as 1 plus nx. Some of the students said कि उनको समझा नहीं कि इसको यूज कैसे करना है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं. जैसे कभी आपको एक क्वेश्चन आया रूट 139, तो रूट 139 इसके पास में कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट पहले से पता हो, दैट इज, अच्छा इसको मैं वापस से चेंज भी कर सकता हूँ. सो आई कैन चूज अनदर नंबर, any number closer to this whose square root is known from before. I can choose 121 also, but उस केस में आंसर थोड़ा सा less accurate आएगा. So this is 18 more than 121, right? So 121 plus 18. So I'll take 121 common. This is 11. 1 plus 18 by 121. This is 1 plus 18 by 121 raised to half. 1 plus x raised to half 18 by 120. So this is 9. This is, if I say 120, so this is 3 by 40. So 11 into 43 by 40.
तो 440 and 33, 473 upon 40, 47, 1.8125, so 11.8125, 4, 133, 81. So nearly I'm getting same answer. So thing is कि आपको कैसे भी ये फॉर्म में लिखे ना 1 plus x whole raised to n, उसको बाद में 1 plus nx लिख देंगे और x का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए, राइट ना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो लेट मी नो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर आ गया है तो यू ट्राई 2 of the questions. Try using binomial theorem to evaluate approximate an approx value of so ये 3 क्वेश्चन लिखे मैंने. Approximate value of 1001 upon 1010 is what you have to find. Then you have to find cube root of 350, and then you have to find cube of 101 by using binomial theorem. कोई ऐसा क्वेश्चन ना वहाँ पे फिजिक्स में नहीं आने वाला, but I want you to understand how to use binomial theorem. का 0.99 करके आ रहा है. 0.99 करेक्ट है. मेन है, मैं चाहता हूँ आप समझ जाओ कि ये काम कैसे करता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशंस में यूज नहीं होगा, ये आपको दिमाग में डालना है. ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है, फिजिक्स में, मैथ्स में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है. एंड ऑब्वियसली मैथ्स में एक डिटेल में एक चैप्टर है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम. देयर यू विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, बट मुझे फिजिक्स में जितनी जरूरत है मैं वो सिखा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ. आई सेड कैलकुलेट दिस, तो आई टेक 1000 कॉमन, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 0.001. आई टेक 1000 कॉमन, तो 1 प्लस 0.1000% तो 0.01. नहीं ना, इसको ऊपर लेके जाओ तो 1 प्लस 0.001 इंटू 1 माइनस 0.0. सॉरी आई विल राइट वन स्टेप. तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो रेस टू -1 हो जाएगा, 1 प्लस 0.01 रेस टू -1 हो जाएगा, राइट. 1000 मैंने ऊपर नीचे से निकाल के कैंसिल कर दिया, तो आई गॉट 1.001 एंड आई गॉट 1.01. इसको मैं ऊपर ले गया, रेस टू -1 लिखा ना. 1 प्लस x होल रेस टू n is what 1 प्लस nx, तो 1 प्लस 0.001 ये हो गया 1 माइनस 0.0. Now if I multiply these two, 1 minus 0.01 plus 0.001 minus ये दोनों का प्रोडक्ट नेग्लेक्ट कर दो. This is 1.001 minus 0.01. This comes with 9. Sorry, 0.01. So this is 1.99. That's to 0.991. ये आई वैल्यू. Now let me use calculator. So up to 3 digits मेरा आंसर कैलकुलेटर से, that is exact value 0.991 आ रही. That is nearly
same, right? So ट्रस्ट मी, ये मतलब आप बोलोगे सर ये कौन सा बड़ा काम किया, 0.99 को 1 ही लिख देते सर, ये तो 1 जैसा ही दिख रहा है, इसको 1000 ले लो, इसको 1000 ले लो, तो ये आपका वैसे ही कैंसिल जाना था. दैट्स ट्रू, बट समटाइम्स आई नीड टू कैलकुलेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कभी कभी जरूरत भी पड़ती है. प्लस ये एक्सप्रेशन यूज करना आपको प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू यूज बाइनोमियल थ्योरम. क्लियर है? किसी को बताऊं वापस? 6.33. वेरी गुड. 333. नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ कर दिया, इतना दूर नहीं आना चाहिए. एनीवन एल्स हु हैज ट्राइड? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Please let me know if you have any doubt in this question. नहीं है, ठीक है. Next question is cube root of 350, I said, right? So next one is cube root of 350. Let's see what is cube root of 350. So as I said, what you have to do is you have to choose a number closer to 350 whose cube root is known from before. So 343 is cube of 7. So I can write this as 343 plus 7. ये 343 बाहर निकाल लो, तो 343 का क्यूब रूट 7 हो गया. ये बन गया 1 7 upon 343 रेज़ टू 1 by 3. So this is 7. ये वापस से 49 हो गया. 1 plus 1 by 3, so 1 by 49. So ये समझो 50 है, तो ये 150 हो जाएगा. तो 150 is इसको उतना रहता है. 49 3 is 147, तो 148 upon 3 into 49 is 7, ये 21, तो 148 upon 21. इसको 147 कर लो upon 21, तो 7, सॉरी ये कितना हो गया, 21 upon 3. Sorry, I made a mistake. 147 plus 1, 148, 21. सर 7.04 आ रहा है. 7.04, बट मैंने 7.042 आ रहा है. चलो वेरी गुड बेटा, इतना क्लोज आ गया. तो ये अप्रोक्सीमेशन किया कैसे? 150 था ना ये, तो 1 by 50 is 0.02, तो 0.067, तो 0.007 ले लेता मैं, तो 7.049 मुझे आ रहा है. हाँ ठीक है, चलेगा. 7.042 आ रहा था ना, हाँ चलेगा. वेरी क्लोज, वेरी गुड. एक बार चेक करते हैं हम लोग. मेरे पास नहीं है इसमें क्यूब रूट. 7 पॉइंट, किसी के पास है कैलकुलेटर? चला के देखो एग्जैक्ट आंसर कितना आता है. सर 7.047 आ रहा है. ओके चलो गुड. तो 7.02, 7.042, 04, 049 सब चलेगा. वापस बताऊं क्या किया यहाँ पे? नहीं ना? ओके. थर्ड वन, 101 होल क्यूब. 101 होल क्यूब निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो 101 होल क्यूब किसी ने निकाला अभी तक? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी. You have to learn how to use binomial theorem. 101 whole cube. So I see it as 100 plus 1 whole cube. Take 100 common, so 10 raised to 6. 1 plus 0.01 whole cube. So 10 raised to 6. 1 plus x raised to n is 1 plus nx. So 1 plus 3 into 0.01. So I'll write it as 1.03. तो आंसर में लिखूंगा 1.03 into 10 raised to 6. ये मैं आंसर लिखूंगा. तो 101 का होल क्यूब, if someone says, I'll write it as 1.03 whole raised to, sorry, into 10 raised to 6. ये सोचो आप, नहीं तो वापस से एक्सप्लेन करता हूं मैं.
सर एक बार वापस समझाइए। See, what I know is 1 plus x whole raised to n को मैं 1 plus nx लिख सकता हूँ, provided this value of x is very small, right? Now my question was 101 whole cube. तो 101 whole cube के लिए I wrote it as 100 plus 1. But I need 1 plus something which is very small. तो I said 1 plus 100 तो चलेगा नहीं, तो 100 मैंने बाहर निकाल लिया। तो 100 मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 1 plus 1 by 100, ऐसा ये सोचा मैंने, राइट? तो 100 is 10 square and cube of it is 10 raised to 6, बचा 1 plus 0.01 whole cube। तो अब ये देखने में 1 plus x raised to n बच गया, तो 1 plus nx, तो n is 3, तो 1 plus 3 into 0.01, तो this gives me 1.03, तो answer is 1.03 into 10 raised to 6। नहीं समझा तो I'll explain again। आ गया सर। Okay, so this is how we use binomial theorem, right? Hello. So this is how we use binomial theorem for calculations. Now today I'll discuss how to use some tricks based on percentages के ऊपर भी कुछ questions आते हैं। So let's begin with, let me introduce percentage। percentage सबको मालूम है क्या होता है। If I say x% of y, that is x into y by 100. If I say x is what percent of y, so x by y into 100, right? Now what shortcuts you have to learn here, what approximations you have to see here is, first one, increasing any quantity by r% is as good as multiplying it with 1 plus r by 100. Example, if someone says increase 750 by 20%, so what we have seen till now is 750 का 20% निकालते थे, right? And हम क्या करते थे, इसको फिर 750 में ऐड करते थे, only to get a number obtained by increasing 750 by 20%. Now what I say is, अब इसको आप दूसरे एंगल से देखना है आपको। 750 को 1 plus 20 by 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 750 into 1.2 है, तो ये आपका 900 हो गया। तो आपको ऐसे देखना है, तो increasing any number by 20% is as good as multiplying it by 1 plus r by 100. Similarly, अगर मैं बोलूं आपको डिक्रीज करना है, तो क्या आप बोलोगे किससे मल्टीप्लाई करना है? Decreasing any quantity by r% is as good as multiplying it by 1 minus r by 100. Yes. So किसी भी नंबर को अगर r% से डिक्रीज करना है, तो इट इज एज गुड एज मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 1 minus r by 100. आपको ऐड करना है, बढ़ाना है, तो 1 plus r by 100 से मल्टीप्लाई करो। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, देन मल्टीप्लाइड बाय 1 minus r by 100, राइट? ये दो चीज हो गई। नाउ नेक्स्ट, now this is important, huh? If y is proportional to x raised to n, or y is equal to x raised to n, suppose, then
p% increase in x gives n into p% increase in y. यहाँ पे 2-4 स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जेई, नीट, न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? कुछ दिया होगा y is this times of x में 3% चेंज किया तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन y। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? So if y is x raised to n, then p% increase in x gives np% increase in y, provided p is small। तो ये अप्रोक्सीमेशन कब तक चलता है? जब तक p का वैल्यू कम होता है, राइट? तो ये भी आता कहां से? दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम, बट चलो एक बार बता ही देता हूं कैसे बना है। Question is, how do we get this? So what we said, x is increased by p%, right? So since x is increased by p%, new value of x. What is new value of x? New value of x is 1 plus p by 100 into x. So new value of x is 1 plus p by 100 into old value of x, right? So new value of y. What is new value of y? x का नया वैल्यू क्या हो गया? 1 plus p by 100 into x whole raised to n हो गया। तो ये x raised to n हो गया और 1 plus p by 100 raised to n हो गया। अब p पहले स्मॉल है, 1 2 3 4 5, तो ये अपॉन 100 कर दिया तो बहुत छोटा है। तो बायनोमियल थ्योरम से ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस using binomial theorem, I'll write this as 1 plus np by 100। तो ये तो y की पुरानी वैल्यू हो गई, मतलब बेसिकली आप y को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 plus np by 100। That is as good as increasing by y by np%। Therefore, new value of y is np% more than y। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। p% increase in x gives np% increase in y। इनफैक्ट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही ये टॉपिक यूज होने वाला है। एंड जेई का ऑलमोस्ट एवरी पेपर, नीट का एवरी पेपर, जेई का एवरी पेपर हैज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, कि अगर x का वैल्यू आपने इंक्रीज किया कितना? p%, तो y का वैल्यू कितना चेंज होगा? if this percentage is very small, अगर ऐसा होता है तो वैल्यू क्या आएगी? ऐसा क्वेश्चन हमेशा जेई में एक फिक्स है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन जेई में और एक नीट में, दोनों में ऐसा क्वेश्चन एक आता है, राइट? सो if y is x raised to n, then p% increase in x gives np% increase in y, provided p percentage increase is small। अब जो अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम, अगर यहाँ पे p% डिक्रीज होगा, या if y is 1 by x raised to n or something, then 1 by x raised to n, then p% increase in x gives np% decrease in y। See, अगर डिनोमिनेटर को आप बड़ा करोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो अगर y का वैल्यू 1 अपॉन x रेज टू n है, और अगर आप p में x में इंक्रीज कर रहे हो, कितना p% इंक्रीज कर रहे हो इन x, then this gives np% decrease in y, राइट? अगर डिनोमिनेटर बड़ा करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे हम लोग, सारी चीजें मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दूंगा ना। if there is a product, if z is x into y, suppose, या अभी इन जनरल लिखता हूं x into y, and x and y
are increased by P% and Q%, then Z increases by P plus Q%. इस सब तुमको यूज होना है P plus Q%, ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। ये हमारे बुक के फर्स्ट चैप्टर से ही यूज होगा। एंड वापस इंपॉर्टेंट समझा दूं आपको, ये सारे एग्जाम में आता है, जेई में आता है, नीट में आता है, आपके जो भी स्कूल एग्जाम्स होंगे उनमें सब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा। किस पे? परसेंटेज इंक्रीज वाला। बस लैंग्वेज अलग होगी। हम आपके टेक्स्ट बुक में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी बाद में दिखाऊंगा, बट अभी आप ये चीज याद रखना है आपको कि कैसे शॉर्टकट से हम क्या शॉर्टकट्स हैं टू कैलकुलेट percentage changes in one quantity when percentage change in other quantity is given. So what is written here? If Z is X into Y and X and Y are increased by P%, Q%, then P plus Q%, sorry, then Z increases by, then Z increases by P plus Q%. तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और वो आप सोचोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा।